હેલો એવરીવન, મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ટોક્સ વિથ અનિશા મૈડામાં ફરીથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે મિત્રો એક નવા જ પ્રકારનો વિડીયો લઈને આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ છું. આજના વિડીયોનો વિષય છે ડિબેટ ઓન ધી ફોરમ ઓફ ઓપિનિયન્સ, અથવા તો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ચર્ચા મંતવ્યોના મંચ પર. મંતવ્યોના મંચ પર એટલે એની અંદર વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાના મંતવ્યો રાખી શકે છે અને તેથી વિદ્યાર્થીઓ જે છે એનામાં પોતે વિચાર શક્તિ આવે છે, એની અભિવ્યક્તિ જે છે તે ખીલે છે અને સાથે સાથે એની સમજ શક્તિ પણ એની અંદરથી ખીલે છે. તો આવા ડિબેટ જે છે તે શાળા કક્ષાએ એને આપણે રાખવી જોઈએ. કેમ રાખવી જોઈએ એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો સૌ પ્રથમ ડિબેટનો ખરેખર અર્થ શું છે ચર્ચાનો, આપ સૌને ખબર છે, પણ છતાં હું એકવાર એ સંદર્ભમાં આપની સમક્ષ રજૂઆત કરવા માંગુ છું. તો ડિબેટ એ એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ અથવા તો વધારે વ્યક્તિઓનું જૂથ, બરાબર છે, એ કોઈ એક વિશિષ્ટ વિષય પર પોતપોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરી શકે છે અથવા તો પોતાનો અભિપ્રાય જે છે તે પોતે વ્યક્ત કરી શકે છે. જેની અંદર એક પક્ષ જે છે, કારણ કે બે પક્ષમાં આ વાત થશે ડિબેટ એટલે, તેમાં એક પક્ષ છે એ તમારી પાસે જે વિષય છે તેની તરફેણમાં એ બોલશે, તરફેણમાં અથવા તો ઇન ફેવર એ બોલે છે, જ્યારે બીજો પક્ષ જે છે તે શું કરશે, વિરોધમાં પોતાની દલીલો વ્યક્ત કરશે. વિરોધ એટલે એની અગેન્સ્ટમાં, બરાબર છે. એટલે ડિબેટની અંદર આ બે પ્રકારના જૂથો હોય છે. એક તમારો જે ટોપિક છે તેના ફેવરમાં બોલશે, જ્યારે બીજો જે છે તેની અગેન્સ્ટમાં એ પોતે રજૂઆત કરે છે, બરાબર. એને વ્યાખ્યા સ્વરૂપે જો આપણે જોવું હોય તો એમ કહી શકીએ કે ડિબેટ એ એક રચનાત્મક ચર્ચા છે. કેવી ચર્ચા છે? રચનાત્મક ચર્ચા છે. કેમ? તો જેમાં તર્ક અને નમ્રતા દ્વારા વિષયના વિવિધ પાસાઓને રજૂ કરવામાં આવે છે, બરાબર. રચનાત્મક કેમ છે? તો એની અંદર આપણી પાસે જે વિષય છે એના સંદર્ભમાં તર્ક અને નમ્રતા આ બંને દ્વારા વિષયના જે જુદા જુદા પાસાઓ છે એને રજૂ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. આગળ આપણે જોઈએ તો આપણે શાળામાં ડિબેટ રાખવાનો હેતુ શું છે? કેમ આપણે ડિબેટ રાખવી જોઈએ? તો શાળાની અંદર ડિબેટ રાખવા માટેનો આપણી પાસે ખૂબ જ સારો શૈક્ષણિક અને વ્યક્તિત્વ વિકાસનો હેતુ છુપાયેલો છે, બરાબર. શૈક્ષણિક વિકાસ તો થાય છે બાળકનો, વિદ્યાર્થીનો શૈક્ષણિક વિકાસ થાય છે, પણ સાથે સાથે એનો વ્યક્તિત્વનો પણ વિકાસ થાય છે. તો એ હેતુસર આપણે શાળાની અંદર ડિબેટ રાખવી જોઈએ, બરાબર. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ડિબેટ એ ફક્ત ભાષણ નથી, પણ શું થાય છે એની અંદર સામસામે વિદ્યાર્થીઓ પોતે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે અને એટલા માટે જ વિદ્યાર્થીઓની વિચાર શક્તિ વધે છે, એની અભિવ્યક્તિ ખીલે છે, એને જે બોલવું છે એને અભિવ્યક્ત કરતા એ પોતે શીખે છે અને સાથે સાથે સમજ શક્તિ પણ કેળવાય છે. કેમ કે સામેનો વ્યક્તિ જે બોલે છે તેના સમજીને એના સામે આર્ગ્યુમેન્ટ એને કેવી રીતે કરવી છે એ પોતે સમજતો થાય છે. શાળામાં ડિબેટ આપણે કેમ રાખવી જરૂરી છે તો તે પોઈન્ટ જોઈએ. વિચાર શક્તિ અને તર્ક શક્તિ વિકસાવવા માટે, બરાબર. વિદ્યાર્થીઓની વિચાર શક્તિ અને તર્ક શક્તિ જો આપણે ખીલવવી હોય તો ડિબેટ જે છે એ અગત્યનો ભાગ એની અંદર ભજવે છે. એટલે આપણે શાળા કક્ષાએ રાખવી જોઈએ, કારણ કે વિદ્યાર્થી વિચારતો થશે, તર્ક દોડાવતો થશે તો એ કંઈક નવું કરી શકશે, નવું વિચારી શકશે. આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે એ જ્યારે ડિબેટના પ્લેટફોર્મ પર બોલે છે ત્યારે એ પોતે હિચકિચાયા વગર સમજીને ફટાફટ સામેના માણસને આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકે છે, સામેના વ્યક્તિને. એટલે એના લીધે એનામાં શું થાય છે, કોન્ફિડન્સ વધે છે, બરાબર. ભાષા અને સંવાદ કુશળતા વધારવા માટે એ જે પણ લેંગ્વેજમાં ડિબેટ થાય છે એ લેંગ્વેજ જે છે
એની એ શુદ્ધ લેંગ્વેજ એ પોતે બોલતો થાય છે. અને સંવાદ કુશળતા એ પોતે એકબીજા સાથે જે કમ્યુનિકેશન કરવાનું છે, સંવાદ કરવાનો છે, એમાં એ વધારે ને વધારે કુશળ થતો જાય છે. અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી વિચારવા માંડે છે. કેમ? કારણ કે સામેનો વ્યક્તિ જે બોલે છે એની સામે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવી છે, એટલે એ સામેના વ્યક્તિની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને એ પોતે પોતાની શું બોલવું છે તે વિચારે છે. એટલે અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી એ વિચારવામાં થાય છે, વિચારતો થાય છે. ટીમ વર્ક અને સ્પર્ધાત્મક ભાવના આવે છે. કારણ કે ડિબેટની અંદર આપણે બે ટીમને સામસામે રાખીએ છીએ, એટલે દરેક ટીમના મેમ્બરો ટીમના જે દરેક મેમ્બરો છે એ મેમ્બરો સાથે એ પોતે વ્યવસ્થિત રીતે સંવાદિતા સાધીને રહે છે અને એકબીજાને સમજતો થાય છે. એટલે ટીમ વર્ક જે છે એ એના માટે ખૂબ જરૂરી છે. અને સાથે સાથે સ્પર્ધાત્મક ભાવના પણ આવે છે. કેમ? તો એને એક જ મગજમાં એમ હોય કે મારી સામેની ટીમને મારે જીતવા નથી દેવી, એટલે સ્પર્ધાત્મકતા ખીલવવા માટે પણ જરૂરી છે. સાથે સાથે શૈક્ષણિક અને સામાજિક મુદ્દાઓની સમજણ માટે આપણે રાખવી જોઈએ. શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ આપણે જ્યારે પણ ડિબેટ જે રાખીએ ત્યારે શૈક્ષણિક મુદ્દો લઈએ તો તે એ સમજી શકે છે. સાથે સામાજિક મુદ્દાઓ જે છે એના પર ટોપિક રાખીએ તો એ પણ એ વધુ સારી રીતે સમજી શકે છે. તો આ બધી બાબતો વિદ્યાર્થીઓમાં આવે તે માટે શાળાની અંદર ડિબેટ રાખવી જરૂરી છે. હવે આપણે વિચારીશું કે વિદ્યાર્થીઓને કયા લાભ થાય છે. વિદ્યાર્થીઓને ડિબેટથી કયા લાભ થાય છે? તો વિચાર શક્તિ અને તર્ક શક્તિનો વિકાસ થાય. જે આપણે જરૂરી કેમ છે તેમાં લીધું છે કે વિચાર શક્તિ અને તર્ક શક્તિનો વિચાર થાય છે. કેવી રીતે થાય છે? તો વિદ્યાર્થીઓને જે વિષય આપ્યો છે તે વિષય પર એ ઊંડાણપૂર્વક વિચારતો થાય છે. બરાબર? એ ઊંડાણપૂર્વક વિચારે છે તો એને ખબર પડે છે કે મારે કઈ કઈ રજૂઆતો કરવાની છે. અને સાથે સાથે દલીલો કેવી કરશે? તર્કસભર દલીલો કરતો થાય છે. એટલે એની તર્ક શક્તિ જે છે એ પણ વિકસે છે. બીજું, અભિવ્યક્તિ અને સંવાદ કુશળતા વધે છે. બરાબર? એ જાહેરમાં બોલે છે. આ ડિબેટ જે થાય છે એ દરેક ક્લાસના જે શાળાની અંદર રાખ્યું છે તો શાળાના જે શિક્ષકો છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, એની સમક્ષ એ પોતે જાહેરમાં બોલે છે. એટલે જાહેરમાં કેવી રીતે બોલવું, સ્પષ્ટ અને અસરકારક રીતે પોતાનો મત રાખવો, એ કેવી રીતે રાખવો એમાં એ નિપુણતા કેળવે છે. બરાબર? જાહેરમાં કેવી રીતે બોલવું અને પોતાનો મત સામેના પક્ષ પર કેવી રીતે સ્પષ્ટપૂર્વક એને રાખવો છે એ વસ્તુમાં એને નિપુણતા આવે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થાય છે. એ પોતે માઇક પર બોલે છે, એટલે માઇક પર બોલવાની પછી એ સામેના જૂથ સાથે પોતે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે, એટલે જુસ્સા સાથે પોતાનો તર્ક રજૂ કરવાની જે ટેવ છે, બરાબર, એનામાં શું થાય છે? આત્મવિશ્વાસ વધે છે. એટલે પછી એ સમાજમાં ક્યાંય અથવા તો એની આગળની જે કારકિર્દી છે તેની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ પોતાની જાતને અભિવ્યક્ત કરવા માટે એ હંમેશા તૈયાર થઈ જાય છે. બરાબર? સામાજિક અને સમકાલીન વિષયોની સમજણ વધે છે. આપણે ડિબેટના જે વિષયો છે એ ડિબેટના વિષયો ક્યાં તો વર્તમાન સમયના આપતા હોઈએ અથવા તો સમકાલીન સમય જે હતો તેના આપણે જો એને વિષયો આપીએ તો એના પ્રત્યેનો એના જે વિવિધ દ્રષ્ટિકોણો છે એના વિશેની એને જાણવાની તક મળે. પછી વિષય અત્યારનો વિષય હોય, અત્યારના જમાનાનો, એટલે અત્યારે જે આપણી પાસે રનિંગ જે સમય છે એની અંદર હોટ ટોપિક કયો છે તે પણ એ જાણે. સમકાલીન સમયના જે ટોપિકો છે એ પણ એ જાણતો થાય છે. બરાબર? શિસ્ત અને સહકાર શીખે છે. બરાબર છે? ટીમમાં કામ કરવાનું છે વિદ્યાર્થીઓએ ડિબેટમાં, એટલે ટીમમાં કામ કરવાનું છે. તે કેવી રીતે થઈ શકે? સમય જે છે તેનું પાલન પણ કરી શકે છે. કારણ કે એની અંદર ટીમ જ્યારે સામસામે ડિબેટ કરતી હોય
ત્યારે સામેની ટીમને આર્ગ્યુમેન્ટ આપવા માટે એની પાસે બહુ ઓછો સમય હોય છે, એટલે એટલા સમયની અંદર વિચારીને એને આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાનું હોય છે. તો એ સમય પાલન પણ એ શીખે છે અને સૌજન્યથી વાંધો ઉઠાવવો એ પણ શીખે છે. સામેનો વ્યક્તિ જે બોલે છે એ વ્યક્તિને સામે એનો વિરોધ નોંધાવવો, સામે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવી, વિરોધ કરવો, આ બધી વસ્તુ જે છે એ એને કેવી રીતે કરવાની છે, શિસ્તબદ્ધ રીતે સૌજન્યથી કરવાની છે. સામેના માણસનું અને ઇન્સલ્ટિંગ ન થાય, એનું સ્વમાન ન ઘવાય એવા રીતે એને પોતે રજૂઆત કરવાની છે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ શીખે છે એટલે એનો એને લાભ થાય છે. બરાબર છે. બોનસ શું છે આનો? તો સંવાદ કૌશલ્ય એટલે કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ એની ખૂબ સારી થાય છે. અને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ સારી થશે તો આજના જમાનામાં એ બાળક જે છે, વિદ્યાર્થી જે છે એ પોતાની જાતને કોઈ પણ જગ્યાએ ખૂબ સારી રીતે વ્યક્ત કરતા શીખે છે અને એના લાભ કેટલા છે તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. અને વિષયને ઊંડાણથી સમજવાની સમજણ વિકસે છે. બરાબર. કોઈ પણ વિષય એને આપ્યો છે ડિબેટમાં તો એને ઊંડાણપૂર્વક એ વિષયને સમજવો પડે તો જ એના વિશે બોલી શકે. બરાબર છે. એટલે આ ઊંડાણથી સમજવાની સમજણ જે છે તે એનામાં વિકસે છે. તો આજે મારી સ્કૂલની અંદર ડિબેટ રાખી છે મેં, અને એ ડિબેટનો સબ્જેક્ટ છે એઆઈ ટીચર વર્સિસ હ્યુમન ટીચર. તો આપણે જોઈએ કે વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ કેવી રીતે પોતપોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ આની અંદર રજૂ કરે છે. બરાબર. એક ટીમ જે છે એ એઆઈ ટીચરની ટીમ છે અને બીજી ટીમ છે હ્યુમન ટીચરની. તો બંનેના આર્ગ્યુમેન્ટ આપણે જોઈએ એવો કેટલી સરસ રીતે પોતાની आर्ग्यूमेंट रजू करे छे. तो चलो अपने निहारिए. तो गर्ल्स, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं. बराबर है. आजकल का जमाना जो है वो कौन सा जमाना है आपको पता है? अभी एआई का जमाना है ना. बराबर है. तो एआई में से आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो. कितने लोग एआई का यूज करते हो? कितने गर्ल्स? काफी सारी गर्ल्स जो है वो एआई का यूज करते हैं. ठीक है. तो फिर आप लोग एआई का यूज करते हो तो स्कूल में क्यों आते हो? स्कूल में क्यों आते हो? एआई के थ्रू आप पढ़ सकते हो ना, है ना. हाँ. तो हमारे पास अभी 2 टीचर्स है आपके पास. बराबर. एक एआई टीचर है और एक आपका ह्यूमन टीचर है. 2 टीचर्स आप हैं, आपके पास है. बराबर है. इसमें से कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा है, उसके लिए हम आज डिबेट करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास 2 टीम है. एक टीम ये जो है वो एआई टीचर के टीम है और दूसरी ये टीम है वो ह्यूमन टीचर टीम है. ये 2 टीम है हमारे पास. तो आप आज हम डिबेट के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है. कर सकते हैं कि नहीं? श्योर? ठीक है. तो दोनों टीम डिबेट करेंगी. आप सब लोग जो है वो ऑडियंस हैं, आपको भी कुछ बोलना है अगर, तो इन लोगों का खत्म हो जाएगा डिबेट, उसके बाद आपको भी चांस दिया जाएगा. ठीक है. लेकिन तब तक आपको सुनना है और आपको भी अपने आप में खुद में डिसाइड करना है कि कौन सी दलील अच्छी है. ठीक है. जो आर्ग्यूमेंट होगी ना वो किसका आर्ग्यूमेंट अच्छा है और किसका अच्छा नहीं है, या फिर लीगल है आर्ग्यूमेंट या नहीं है, वो आपको भी अपने मन में डिसाइड करना है. ठीक है. कभी कभी मैं आपको भी पूछूंगी कि ये लीगल है या नहीं लीगल है, आर्ग्यूमेंट जो करेंगे वो. ठीक है. तो हम ये जो कॉइन है वो उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि पहले कौन स्टार्ट करेगा. ठीक है. अच्छा, चलो बोलो आपका. टेल आया. तुम्हारा टेल था ना. तो ये टीम जो है एआई टीम वो अपना आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेगी. हमारा पहला पॉइंट है कि एआई अभी हर जगह अवेलेबल है और हम उसे सब जगह पे फाइंड करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं. और हमारा भी पहला पॉइंट ये है कि एआई टीचर्स हमारी फीलिंग्स नहीं समझ सकते पर ह्यूमन टीचर हमारी फीलिंग्स समझ सकते हैं.
ओके, दोनों के पॉइंट जो है वो कैसा आर्गुमेंट कैसा है आप बोल सकते हैं? दोनों के आर्गुमेंट करेक्ट है। ओके, दोनों के करेक्ट है तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई, वो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि जिसका आर्गुमेंट करेक्ट होगा उसको 1 मार्क्स मिलेगा। जो आर्गुमेंट करेक्ट नहीं है, लीगल नहीं है, तो माइनस में जाएगा। और जो ज्यादा टाइम लेगा, अगर आपके पास 10 सेकंड है, उससे ज्यादा टाइम आप लेंगे तो भी माइनस में जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, फाइन, कंटिन्यू। ह्यूमन टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं लेकिन एआई टीचर्स इरिटेट नहीं होते हैं। बट वो हमारी मतलब बट क्योंकि इरिटेट क्यों होते हैं, क्योंकि हम उनको इरिटेट कर देते हैं। हम उनको इरिटेट नहीं करें और हम उनसे अच्छी तरीके से समझ के पढ़े तो वो हमें और भी अच्छी तरह से इजी वे में समझ के पढ़ा सकते हैं। ओके, बोलिए, ये दोनों करेक्ट है या नहीं है? यस, करेक्ट है। एआई करेक्ट है और ये ह्यूमन टीचर का। मैं उसको वैलिडिफाई करना चाहूँगी उसके पॉइंट को। ओके, बोलो। ह्यूमन टीचर्स अगर हम उनको इरिटेट करें तो हो सकता है, लेकिन एआई को हम जितना भी परेशान करें, जितना भी उसको लोड दे, वो कभी भी हमारे साथ इरिटेट नहीं होगा और हमें अच्छे से रिस्पॉन्स देगा। ओके, बट AI कैन ग्लिच बट ह्यूमन टीचर्स कैन नॉट। लेकिन वो तो अभी का आर्गुमेंट ही नहीं था ना। क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एआई टीचर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, वो फिर मांगने लगता है कि आपको ये आंसर चाहिए, वो चाहिए, क्लैरिटी चाहिए उन्हें कि यही चाहिए। मैम कैन आई वैलिडेट? यस, एक ही एआई एप्स नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। चैट जीपीटी होते हैं और जेनिमी होते हैं। तो अगर चैट जीपीटी में कोई भी ग्लिच आ रहा है तो हम कोई दूसरे एआई ऐप पे जाकर वही आंसर ढूंढ सकते हैं। बट तो भी उन्हें एकदम क्लैरिफाई करना पड़ता है, वो एकदम अच्छे से आंसर नहीं बता पाते। आजकल प्रॉम्प्टिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई है और भी एडवांस हो रही है। इवन गूगल के जो सीईओज हैं, इन्वीडिया के जो सीईओज हैं, उन लोगों ने इतना कोडिंग भी और प्रॉम्प्टिंग भी इतना इजी कर दिया है कि हम जितनी भी इजी लैंग्वेज में टाइप करें वो हमें आंसर्स दे देते हैं। ओके, फाइन, राइट। आपका कुछ बोलो। बट AI टीचर्स मतलब AI के लिए हमें पर्टिकुलरली हमें मनी देकर हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पर इसमें हमें नहीं चाहिए होता है। ओके, ऐसा नहीं है क्या? तूने आप लोग ने कभी चैट जीपीटी यूज़ नहीं करा है? उसमें आपको कोई भी मैथ्स का सम सॉल्व करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मुझे तो आज तक नहीं हुआ है। और इवन हमारे स्कूल में से भी कितनी बार चैट जीपीटी का यूज़ हो चुका है। उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, हमारा स्टैंडर्ड डालना पड़ता है एंड चैप्टर्स डालने पड़ते हैं। ओके, फाइन। ह्यूमन टीचर्स को भी हम जब बताएंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, तब वो सॉल्व करेंगे ना। जैसे ही हम ह्यूमन टीचर्स को बताएं वैसे ही हमें चैट जीपीटी को टाइप करके देना। अब तो बोल भी सकते हैं, इवन हम वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं। लेकिन AI इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं एक टॉपिक डालूँ तो उसकी बहुत ज़्यादा लिंक आते हैं। हमें क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो सिर्फ हमें ज़्यादा रिसोर्सेज दे रहा है क्योंकि हम ज़्यादा रिसर्च कर पाए। और अगर हम अब उनको बोल दे कि हमें लेमन लैंग्वेज में चाहिए, हमें शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, तो वो भी देगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। सही बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कभी कभी हर जगह सेम प्रोजेक्ट या सेम चीज़ें बता देता है, तो सब लोगों के सेम हो जाते हैं प्रोजेक्ट, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। राइट। ऐसा नहीं है। एआई हम जिस टॉपिक के बारे में बताते हैं हमें उसी टॉपिक के बारे में प्रोजेक्ट बताता है। अभी सब थोड़ी एक ही टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब सबका अलग अलग टॉपिक रहता है ना। बट आजकल के जनरेशन में सारे स्टूडेंट्स एआई का ही यूज़ करते हैं, और अगर हम प्रोजेक्ट डालें फॉर एग्जांपल ऑन वाटर साइकिल, तो सबको सेम एग्जांपल ज़्यादा देगा जो स्कूल में जाके सिमिलर हो जाएंगे। एकदम सही है। बोलो बोलो, आप में से कोई? पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम एआई को बताए कि हमको ऐसे टाइप का मतलब कोई अलग डिफरेंस भी चाहे तो हमको उसके बारे में वो ज़्यादा डिटेलिंग में भी दे सकता है, और हम उसको जैसा लेबलिंग करने के लिए दे वो एआई हमको इमेज बना के दे सकता है, तो सिमिलर नहीं होगा वैसे। राइट। बट ऑन द सेम टॉपिक हमारे ह्यूमन टीचर्स क्रिएटिव आइडियाज दे सकते हैं उसके बिहाफ पे। गुड।
ह्यूमन टीचर्स नाउअडेज ऑल्सो, वो लोग भी आईपी बोर्ड्स एंड सबके ऊपर हम लोगों को वाया एआई टेक्नोलॉजी ही पढ़ाते हैं. दे ऑल्सो यूज एआई रिसोर्सेज टू टीच अस. सही है. हाँ पढ़ाते हैं टीचर्स भी, लेकिन एआई को क्रिएट किया ही ह्यूमन ने. And now AI is leaving humans behind. We all know that. सबको पता है कि AI एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, टाइम सेविंग है, सबको ज़्यादा यूज़ करने में इजी लगता है. बट अगर नेटवर्क और वाईफाई ना हो तो कैसे यूज करोगे एआई को? जबकि टीचर हर जगह अवेलेबल है, हम उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसको हम वाईफाई के बिना नहीं पूछ सकते. अब अभी आप लोग ने ऐसा बोला कि ह्यूमंस ने एआई को बनाया है, तो क्या आप लोग उसका रीजन दे सकते हैं क्यों बनाया? क्योंकि ह्यूमंस तो काफी है समझाने के लिए, तो फिर एआई की क्या जरूरत पड़ी उनको? इसका वैलिड पॉइंट दो आप. Absolutely correct. बहुत जगह होती है जहाँ पर ह्यूमन टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उन्हें भी तो कोई कभी दिक्कत आएगी ना. एआई टीचर्स भी कभी कभी ग्लिच हो जाते हैं, तो वैसे ह्यूमन टीचर कभी बीमार नहीं हो सकते, तो उसके लिए तो एआई भी होना जरूरी है. ऐसा नहीं बोल रही मैं कि एआई नहीं होना चाहिए, AI भी जरूरी है. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन टीचर अगर नहीं होंगे तो ज्यादातर लोग एआई के पास जाएंगे. ह्यूमन टीचर के होते हुए कोई एआई के पास ज्यादातर नहीं जाता है. ओके. एआई टीचर्स ठीक है, आप लोग ने जो बोला सही है, बट ह्यूमन टीचर्स को भी तो कभी कभी प्रॉब्लम आती होगी ना. उन्हें भी तो कितनी चीजें नहीं समझ में आती होगी, तो ऑब्वियसली वो लोग भी एआई का यूज करेंगे ही. और जैसे आपने अभी ही बोला था कि एआई टीचर को भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, तो सॉरी ह्यूमन टीचर्स को, तो वो एआई का यूज करते हैं. पर ह्यूमन टीचर एआई का यूज करके वो लैंग्वेज को हम स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बोल सकते हैं. और AI हमें वो चीज़ डायरेक्टली करके दे रहा है विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट. पर हाँ एआई बहुत बार मैनी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल गुजराती और संस्कृत. एक मिनट. हाँ, तो मैंने अभी जैसे ही बोला अलग अलग टाइप के एआई आ गए, और अब एआई इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि अंदर हम पूरी गुजराती में और संस्कृत में नोट्स भी बना सकते हैं. और इवन मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने उसमें मेरा पूरा संस्कृत का ग्रामर सीखा है चैट जीपीटी पर. मैं बता देती हूँ, एक टाइम पे जब तू भी हमारे साथ थी ह्यूमन टीचर के डिबेट में, तब तूने बोला है कि गुजराती अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर सकता गूगल, वो थोड़ा डिफिकल्टी करता है और उसे बहुत टाइम जाता है, जबकि टीचर हमें इजीली समझाता है. That's what we are saying. That's what we're saying. तुम्हें डिस्कवर करना पड़ेगा कि कौन सा AI सूटेबल है उसके लिए. बहुत सारे टाइप्स के AI है, बहुत सारा. एंड इवन हमारे जो इंडियन पीपल है वो अपनी लैंग्वेजेस में AI डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हमें इजीली सपोर्ट मिल सके. AI टाइम बचाता है, AI एनर्जी बचाता है. बिकॉज सी आजकल नोट्स भी AI बना के देता है, हमें नोट्स बनाने में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता. टाइम भी बच रहा है, एनर्जी बच रही है हमारी. हमें पीपीटी वो बना के दे सकता है अच्छी सी एस्थेटिक, यू नो. बट वो जैसे कि आपने बोला कि नोट्स वो हमें बना के देता है, पर जैसे कि एआई नहीं होता तो हम खुद ही नोट्स बनाते हैं ना. हमारी जो क्रिएटिविटी वो है, पर वो हमारे जैसे कि स्किल को डेवलप करने नहीं देता. हमको ऐसा लगता है कि एआई है तो अभी हम कर लेंगे. एआई नहीं होता कोई जगह तो हमको खुद को दिमाग चलाना पड़ता है. वाईफाई ही नहीं हुआ तो कोई भी क्रिएटिव टास्क नहीं है. नोट से हम पढ़ने के लिए नोट्स बनाते हैं और एआई हमें एनहांस्ड डिटेल्स भी नोट्स दे सकता है और समराइज्ड नोट्स भी दे सकता है. हमारा टाइम बच रहा है उससे. एंड व्हाट इफ सम रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट फॉर देम. वो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल ना होती हो, पर टीचर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे. टीचर्स को भी फीस देनी पड़ती है. एआई सबके पास अवेलेबल है, फ़ोन, कंप्यूटर्स. एंड इस ज़माने में ऑलमोस्ट सबके पास फ़ोन होता है, ऑलमोस्ट. लेकिन टीचर्स को फीस देनी पड़ती है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्कूल सपोर्ट नहीं है, जिनके आसपास अच्छे टीचर्स नहीं है, वो लोग एआई के पास से पढ़ाई कर रहे हैं. इंडिया में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है. और वही आपने अभी पैसे का बोला कि पैसे नहीं पे करने पड़ते एआई को, वो सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते अगर हमें हाई प्रोफाइल नॉलेज चाहिए तो.
वी ऑल नो बहुत सारे फ्री एआई रिसोर्सेज है, चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, एंड देयर आर सो मेनी. मैं कितने एग्जांपल्स दे सकती हूँ. क्या? अच्छा, जेमिनाई, हाँ, इसने बोला एक एग्जांपल. लेकिन इंडियन टीचर्स भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन टीचर्स वो भी बहुत ज़्यादा ही है, वो कोई कम नहीं है, एंड मोर देन एआई टीचर्स. But one human teacher can teach only 1 or 2 subjects at a time. But AI हमको सारे subjects अकेले एक ही टाइम पे पढ़ा सकता है. अगर हम सब्जेक्ट शिफ्ट करेंगे तो it will never glitch. ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होती है, वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं. बहुत सारे होते हैं ऐसे. बट होते हैं ना, एआई तो है ऐसा, एआई तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट बता सकता है, ऐसा नहीं है. AI ऐसे होते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते वही. हैं. तुम ऐसी बात करें कि कुछ कुछ टीचर्स को पता होता है सारे सब्जेक्ट, सारे एआई को सारे सब्जेक्ट्स पता होते हैं. हाँ भाई, हो गया, हो गया. जैसे इसने बोला एआई हमें सब कुछ पढ़ा सकता है, बट अगर हमें एग्जाम देने का टाइम आया, एआई हमें सुपरवाइज नहीं कर सकता है. वही फिजिकल टीचर का क्लास में होगी तो हम चीटिंग नहीं कर सकते. और आजकल की जनरेशन में कोई भी बच्चा इतना लॉयल नहीं होता है कि वो विदाउट चीटिंग करे एग्जाम दे सकता है. ओके चलो आप लोग का ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन हमारी जब एग्जाम्स होती है उसके पहले अगर हमें कोई प्रैक्टिस चाहिए, अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जाता और ट्यूशन में प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं, क्यों देते हैं कि हम एग्जाम में अच्छा अपियर कर पाए, तो वो बच्चा एआई का यूज़ करके खुद के पेपर्स जनरेट करवा सकता है और उसकी खुद से टेस्ट ले सकता है. और मैं जानती हूँ यहाँ से कितने लोग हैं वो मोस्टली, और हाँ मेरे पास और एक वैलिड पॉइंट है, जब यहाँ पे लोगों को टीचर्स का समझ में नहीं आता बच्चों को, और आप लोग में से भी मैं कितनों को जानती हूँ वो लोग घर जाकर यूट्यूब पे वही सारे वीडियोस फिर से निकाल के पढ़ते हैं उसमें से, तो वो आप क्यों एआई का यूज करते हो? बट यूट्यूब पे भी टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं. एनिमेटेड वीडियोस में भी टीचर ही बोल रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है एआई बोल रहा है. एनिमेटेड वीडियोस एआई जनरेट कर सकते हैं, मैं तुमको जनरेट करके दिखा भी सकती हूँ. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एआई को हम कभी भी पूछ सकते हैं बिना कुछ सोचे. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या हमें ऐसे कोई डाउट आ गया और सब स्टूडेंट्स हमारे डाउट से इरिटेट होते हैं. सबको पता है कि अब अगर कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, स्टूडेंट्स इरिटेट होते हैं, हमें शर्म भी आ सकती है, हमें ऐसा भी लगता है कि व्हाट इफ टीचर गुस्सा हो गए. एआई के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम कभी भी फ्रीली कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. अभी आप लोगों ने बोला, अगर क्लास में आप लोगों ने अभी बोला जैसे क्लास में टीचर नहीं समझा रही है, हम घर जाके वही चीज़ समझ रहे हैं एआई के थ्रू. बट अगर हम एआई डे एंड नाइट यूज़ करें तो हमारी आई साइट पे इफेक्ट कर सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम कर सकता है. अगर आप बोल रहे हो कि एआई सिर्फ फोन में अवेलेबल है तो ये गलत बात है. अभी का जनरेशन इतना बढ़ गया कि इसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है कि अब रोबोट्स रियल ह्यूमन की तरह फिजिकल में जनरेट होना शुरू हो चुके हैं, तो वो सिर्फ अब फोन तक नहीं रहे हैं एआई. जो कि एआई के रिलेटेड था. हमें जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया था वो भी एआई के रिलेटेड ही था, उसमें भी हमें एआई का इम्पोर्टेंस बताया था. पर उस चैप्टर में ये भी था कि वो जो रोबोटिक टीचर थे उसमें ग्लिच मारा था, और उसमें ये भी होता है कि ह्यूमन टीचर्स है ना, हमें स्कूल में आके पढ़ाते हैं, हमारी सोशल लाइफ, अगर हम घर पे बैठ के एआई टीचर से पढ़े तो हमारी सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, पर हम स्कूल में आए, हम हमारे फ्रेंड से इंटरेक्शन कर सकते हैं, हमारी सोशल लाइफ बढ़ती है. सोशल लाइफ के लिए सोशल मीडिया अवेलेबल है, बट हम उसकी बात ही नहीं कर रहे. अभी सोशल लाइफ की बात हो ही नहीं रहा है. और जो लोग अपने मेंटल हेल्थ और स्क्रीन टाइम को लेके इतना कॉन्शियस है, वो लोग अपने फ़ोन पे और एप्स पे डाउन टाइम सेट कर सकते हैं. अगर हम सेल्फ कॉन्शियस है उतना कि हमें इतना स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, तो हम डाउन टाइम सेट कर सकते हैं. बट आजकल बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जिनको स्टडीज छोड़ के यूट्यूब, फोन ये सब देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड उनके डिस्ट्रैक्शन, एंड उनके पेरेंट्स हर टाइम उन पे नज़र नहीं रख सकते. इसके लिए वो यू थिंक डिस्ट्रैक्शन स्कूल में नहीं होते? स्कूल में फ्रेंड्स, गलत संगत नहीं होती. ऑब्वियसली सब जगह वो अवेलेबल है ही. अगर हम घर पे बैठ के एआई टीचर से पढ़ेंगे, पर स्कूल में आके हम अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ती है, हमारी फिजिकली हेल्थ भी अच्छी रहती है. पर घर पे बैठ के हम सिर्फ बैठ के एआई टीचर्स से पढ़ते हैं.
एग्जैक्टली पॉइंट देना है। बट एआई के थ्रू हम हमारा स्केड्यूल बना सकते हैं। अभी आप बोल रहे हो कि हाँ फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती, बट अगर हम एआई के थ्रू हमारा स्केड्यूल बनाए उसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। हमें कब पढ़ना है, कब खाना है, कब हमें एक्सरसाइज करनी है, हम सब कुछ एआई हमें मतलब एक अच्छा सा स्केड्यूल बना के दे सकता है। पर एआर हमें सिर्फ स्केड्यूल बना के दे सकता है, पर टीचर्स हमें ऐसा स्केड्यूल बना के दे सकते हैं कि हम हमारा फॉर एग्जांपल हमें पढ़ाई का टाइम है पर अभी हमें मूड नहीं है करने का, तो हम हमारा स्केड्यूल ऊपर नीचे कर सकते हैं और हमारे जो टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने एआई के थ्रू स्केड्यूल बनाया है बहुत सारी बार, एंड एआई हर स्केड्यूल के नीचे हमें लिख के देता है कि यू कैन ऑलवेज एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स। एआई भी ह्यूमन नीड्स को समझता है, उसे पता है कि कोई भी इंसान एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। मैंने उसको बहुत बार बोला है कि मुझे एक दिन में ये भी करना है, ये भी करना है। वो हमेशा मुझे बोलता है कि एक दिन में इतना सारा नहीं हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, नहीं हो सकता। वो हमेशा उसको रिड्यूस करके मुझे टिप्स भी दे सकता है। हर स्टूडेंट पंचुअल नहीं होता है। क्लास में हमारे पास टाइम टेबल होता है, उसमें स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, कंप्यूटर लैब का पीरियड होता है, तो स्टूडेंट्स को कंपलसरी वो पीरियड्स में जाना पड़ता है। जैसे टीचर्स समझते हैं, टीचर्स हम लोगों को ऐसे फ्री पीरियड्स देते हैं, ओके, बट हम एआई को भी ऐसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं दैट इट कैन डिपिक्ट ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इट कैन ऑल्सो गिव अस आवर ओन टाइम इन आवर स्केड्यूल्स। ऐसा नहीं है कि वो हमको कुछ करने ही नहीं देगा, और हमको वो इतनी भी टिप्स देता है कि ये आप करोगे तो इससे आपको ये नुकसान होगा। अगर हम उसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे तो एआई भी हमको ऐसे हाँ वार्निंग्स देगा दैट योर स्क्रीन टाइम इज वेरी एक्सटेंडेड। एआई हर टाइम हम पे नजर नहीं रख सकता है फिजिकली, कि एआई तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में चल रहा है तो वो सामने नहीं देख सकता है वो बच्चा क्या कर रहा है। ह्यूमन टीचर्स हमेशा तो हमारे साथ नहीं होने वाले। ऑब्वियसली तुम ही बोल रहे हो ह्यूमन टीचर्स को भी कभी कभी मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट लेट्स लीव दैट अपार्ट। मैं नया पॉइंट दे रही हूँ कि एआई एक सेकेंड, मैं क्या बोल रही थी मैं तो भूल ही गई। एक सेकेंड। हाँ, हम कोई भी रीज़न से स्कूल में ऐसे छुट्टी हो सकती है, लेकिन फिर हम वो पार्ट कवर एआई से घर पे बैठ के कर सकते हैं। आप लोग ही पता है टीचर्स से बोलते हो कि मैम इस पीरियड प्लीज मत पढ़ाओ, इस पीरियड रहने दो, तो मैम हमारी बात अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ाते, जबकि एआई उस टाइम पे बोल देता है कि आपका पढ़ने का टाइम हो गया, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, चलो। तो टीचर अगर ठीक है बच्चों, आज का हमारा डिबेट यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट दोनों तरफ से होती ही रहेगी। हमारा आज का टॉपिक ऐसा है तो होती ही रहेगी, ठीक है। आप में से किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलो। जैसे कि इन लोगों ने बोला कि एआई टीचर्स होते हैं वो हम पे नज़र नहीं रख सकते, पर जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं वो हम पे नज़र रख के हमें डिसिप्लिन कर सकते हैं। एआई टीचर 24 घंटे हमारे पे डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं। अगर समझो एग्जाम है आज हमारी, हम स्कूल आ चुके हैं, तो हम कहाँ से फोन या एआई ढूंढने जाएंगे, जबकि हम टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। जैसा आप लोग ने बोला कि एआई हमें सब पढ़ा सकता है, लेकिन एआई हमें स्पोर्ट्स नहीं सिखा सकता है। आज कितने स्पोर्ट्स टीचर ने बहुत सारे क्रिकेटर्स को बनाया है, लेकिन एआई तो आज तक किसी को क्रिकेटर को नहीं बनाया है। और बस और किसी को कुछ बोलना है? बोलो। ह्यूमन टीचर हमें लाइफ लेसन सिखा सकते हैं, एआई हमें नहीं सिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमन टीचर्स हमारे पर नज़र रख सकते हैं, बट क्या अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पे नाइट स्टडी करते हैं तो हमको एआई के थ्रू ही पता चलता है ना। मतलब हमको कोई डाउट्स हुए तो हम उसके शॉर्ट वे में उसको ले सकते हैं ना एआई पे से।
मैम जैसे कि वो लड़की ने ऐसा बोला कि हमें स्पोर्ट्स नहीं सिखा सकते। मैं बास्केटबॉल में रह चुकी हूँ और मेरी जो मैम थे वो खुद कितनी सारी ट्रिक्स एब्जॉर्व करते थे यूट्यूब पे स्पोर्ट्स के वीडियोस देखकर, या तो चैट जीपीटी पे कितना बार उनको पूछते थे कि स्पोर्ट्स में कौन सी ट्रिक्स क्या है वो है, तो उसमें भी एआई बहुत यूजफुल है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कोई टीचर्स होता है जो देखता है, बाकी कितने सारे स्पोर्ट्स के टीचर्स है, कितने अच्छे जो क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को सिखाते हैं, एक्सपीरियंस होता है उनके पास जो नॉर्मल यूट्यूब के पास नहीं हो सकता। इवन आई एम अ स्पोर्ट्समैन, मैं भी स्पोर्ट्स में हूँ। मेरे सर भी मुझे खुद ही सिखाते हैं, एआई से बेटर सिखाते हैं उससे अच्छा। और एआई के पास भी इतना सारा रिसोर्सेस नहीं है स्पोर्ट्स सिखाने का जितना ह्यूमन टीचर के पास है। अब एआई भी तो डेवलप हो रहा है ना, मतलब अभी साइंटिस्ट उसको और डेवलप कर रहे हैं आगे जा, बट ऐसा हो सकता है ना कि आगे जाके हमें एआई भी सिखा सकता है स्पोर्ट्स। अभी जैसे जैसे डेवलप हो रहा है कुछ कह नहीं सकते ऐसा कि एआई नहीं ही कर सकता है। फ्यूचर की बात ये बात फ्यूचर की, बट ऐसा तो नहीं ना, ऐसा नहीं एआई नहीं ही कर सकता है। नहीं, जब हम स्पोर्ट्स करते हैं तो हमको फिजिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। बच्चा कब बर्नआउट हो रहा है वो एक फिजिकल टीचर ही जान सकता है, वो एआई नहीं जान सकता है। हमारे यहाँ पे हम पूरा करते हैं, सभी के पॉइंट्स बराबर है। ये लोग भी बराबर बोल रहे थे, आप लोग भी बराबर अपना आर्गुमेंट रखते थे, सही है। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगी कि एआई जो है वो अपनी जगह सही है, ह्यूमन टीचर जो है वो अपनी जगह सही है, बराबर है। लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगी कि टीचर, ह्यूमन टीचर जो पढ़ाते हैं तो ह्यूमन टीचर में माँ की ममता होती है और पिता का प्यार होता है, बराबर है। वो आपको डांटेंगे, पनिशमेंट कुछ भी देंगे, क्यों देंगे? हमारे अच्छे के हमारे लिए, अच्छों के लिए देंगे, बराबर है। टीचर जैसे कि इसने स्पोर्ट्स की बात की, तो स्पोर्ट्स की टीचर है, मान लो कि क्रिकेट है, तो वो बैट पकड़ के ऐसे ऐसे बराबर है, वो बैट ऐसे पकड़ाएगा, फिर ऐसे खड़े रहो, ऐसे बॉल आएगा तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो भी है वो टीचर, ह्यूमन टीचर अपने बच्चों को ऐसे ट्रिक लेके अच्छी तरह से समझा सकते हैं, ठीक है। और एआई जो है वो आपको सही बात देती है, वो भी बात है। और एक पॉइंट वो भी आया था इस तरह से कि गुजराती अच्छी तरह नहीं करता, अभी एआई डेवलप हो रहा है, इसलिए वो बात सही है कि गुजराती मीनिंग जो है वो अच्छी तरह से वो नहीं कर पाता है, मतलब पूरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका मीनिंग जो है वो क्या होता है और चेंज हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, ऐसा भी होता है, बराबर है। तो ह्यूमन टीचर जो है उसकी एक तरफ जो ऐसी जगह है बच्चों के लिए कि आप अगर एआई के थ्रू घर पे बैठ के पढ़ोगे तो क्या होगा, आप बैठे रहोगे, कुछ क्रिएटिविटी नहीं करोगे, कुछ भी आपको चाहिए तो आप एआई में ढूंढ लोगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं होगी। आप अगर स्कूल में आते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, आपका माइंड जो है उससे भी डेवलप होता है, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी होती है, बराबर है। तो जहाँ ह्यूमन टीचर की जरूरत है वहाँ ह्यूमन टीचर ही चाहिए, और जहाँ एआई से आप जो भी पूछना चाहते हैं वो आपको वो गाइडेंस देगा ही देगा, ठीक है। तो अभी हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि किस टीम के कितने पॉइंट्स है, बराबर है। चलो तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाएं, बोलो। टीम ए got 26 पॉइंट पर 2 पॉइंट इनवैलिड थे, इसलिए -2 आया, तो यू got 24 पॉइंट्स। टीम बी क्लैप। टीम got 28 पॉइंट्स, तो -4 हुए, तो दे आल्सो got 24 पॉइंट्स। हमने बोला ना कि एआई की जगह अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन टीचर चाहिए उसकी भी जगह है, तो वही नतीजा निकला आप लोगों की आर्गुमेंट्स है, ठीक है। तो मतलब
मतलब ये जो डिबेट भी क्यों रखा हमने और ये टॉपिक भी क्यों रखा कि आप कुछ क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, आप क्विक डिसीजन ले सके, आपको क्या बोलना है वो आप क्विक डिसीजन ले सके। तो ये भी आपकी एक स्किल डेवलप होती है कि जल्दी जल्दी हम लोग जो भी सामने वाला बोलता है उसके हिसाब से भी हम तुरंत सोच के अपना आंसर दे सके, सामने आर्ग्यूमेंट कर सके। यही उसका फायदा है डिबेट का। आप हम आगे भी और ऐसी कुछ सब्जेक्ट के बारे में डिबेट करेंगे। तो मतलब एवरी टाइम आप यहाँ पे लाइव रहते हो, आपका फिजिकली भी आप यहाँ हो और मेंटली भी आप यहाँ हो। ये डिबेट का यही फायदा है, मेंटली फिजिकली दोनों आप यहाँ होंगे, क्योंकि सामने वाला जो आर्ग्यूमेंट करता है उसके अपोज में कैसे आर्ग्यूमेंट करना है वो आप सोचना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये डिबेट जो है वो ह्यूमन टीचर या एआई टीचर जो भी कराते हैं उससे भी अच्छा ये टास्क है डिबेट का, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को खुद सिखाते हो और खुद भी सीखते हो इसमें से, राइट? ओके। तो दोनों टीम को कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों में से नेक्स्ट टाइम जब हम ये डिबेट रखेंगे तो आप में से सबको पार्ट लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। તો જોયું મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ કેટલી સરસ રીતે સામસામે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે। એનો અર્થ શું કે આ ટોપિક જે છે એ લોકોએ ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક એનો અભ્યાસ કર્યો છે, એ ખૂબ સરસ રીતે પોતે અભિવ્યક્તિ કરી શકે છે, એટલે એનું કમ્યુનિકેશન સ્કિલ જે છે તે વધે છે અને એ પોતે સામેના વ્યક્તિને કેવી રીતે શીઘ્ર જવાબ આપવો તે પણ એ પોતે શીખે છે। તો આવી સરસ રીતે આપણે ડિબેટ જે છે એ આની અંદર નિહાળી। હવે પછી પણ આવા ઘણા બધા વિડીયો હું આપની સમક્ષ મૂકતી જઈશ કે જેની અંદર વિદ્યાર્થીઓની સ્કિલ્સ જે છે એ ડેવલપ થાય। તો મિત્રો, આજનો મારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર કરજો અને હા, મારી ચેનલ જો આપણે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેશો કે જેથી આવા ખૂબ સરસ વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટેના જે વિડીયો છે એ હું એની અંદરથી મૂકતી રહીશ, જે આપ નિહાળી શકશો। થેન્ક યુ વેરી મચ।